नमस्कार। भारत के लोकतंत्र की सबसे प्रतिष्ठित पहचान राष्ट्रपति भवन। आज राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में इतिहास और खेल का शानदार संगम देखने को मिलने वाला है, जहां दुनिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट्स में से एक और एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप के 135वें संस्करण की ट्रॉफियों का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पिछले बार के विजेता हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, जिन्होंने मोहन बागान सुपर जायंट को 2-1 से फाइनल में मात दी थी। इस सीजन में 24 टीमें हैं। 25 जुलाई से यह टूर्नामेंट शुरू होगा, 23 अगस्त 2026 तक चलेगा। कोलकाता, रांची, इंफाल, शिलोंग और गुवाहाटी में मुकाबलों का आयोजन किया जाएगा। रांची पहली बार ड्यूरेंट कप का मेजबान बन रहा है। 24 टीमें हैं। 6 ग्रुप में इन टीमों को बांटा गया है, जिसमें आईएसएल की भी टीमें हैं, आर्म्ड फोर्सेस की टीमें हैं, स्थानीय टीमें हैं और श्रीलंका की डिफेंडर एफसी भी है। शुरुआती मुकाबला कोलकाता डार्बी होगा, यानी मोहन बागान सुपर जायंट का सामना होगा ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब से। 3 करोड़ रुपए की प्राइस पूल है। 6 ग्रुप, 4 टीमें। और ग्रुप की हाईलाइट की बात करें तो इसमें रांची पहली बार होस्ट सिटी के रूप में है। मिनी चैंपियन, वन लेगेसी, ये है थीम। ग्रुप ए की बात करें तो इसमें ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, मोहन बागान सुपर जायंट, साउथ यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और सीआईएसएफ प्रोटेक्टर्स। ग्रुप बी में इंडियन आर्मी फुटबॉल टीम, समलेश्वरी स्पोर्टिंग, मोहम्मदन स्पोर्टिंग और बागपत फुटबॉल क्लब। ग्रुप सी क्रीडांगन में इन मुकाबलों का आयोजन किया जाएगा। ड्यूरेंट कप एक ऐसा टूर्नामेंट जो दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और जीवित फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना वर्ष 1888 में सर हेनरी मॉर्टिनर ड्यूरेंट द्वारा शिमला के एनाडेल मैदान में की गई थी। बहुत कम लोगों को ही यह जानकारी है कि विजेता टीम को
of the Durand Cup Tournament 2026. Established in 1888, the Durand Cup stands as one of the world's oldest football tournaments, originating in India and named after its founder Sir Mortimer Durand. Initially, fostering camaraderie and competitive spirit among army personnel, it has evolved into a prestigious event in Indian football, drawing teams from military, Central Armed Police Forces and clubs nationwide. Throughout its illustrious history, the Durand Cup has witnessed significant milestones with teams from across India and abroad, competing for its coveted trophy, contributing to the growth and popularity of football in the South and Southeast Asia. Embodying resilience, skill and unity, the Durand Cup represents values cherished not only in sports but also within our armed forces. It provides a platform where teams from across the country and overseas converge to showcase their talent and passion for the beautiful game. As today marks the unveiling of the Durand Cup trophy and a flag off ceremony of the trophy tour, the oldest football tournament in India, the Durand Cup, the President's Cup and the Shimla Trophy are awarded to the winning team in this tournament, which has been held for over 138 years. The competition was first held in Shimla in 1904 by the residents of Shimla. In 1950, the first president, Dr. Rajendra Prasad, presented the President's Cup to the winning players. Thus, the Durand Cup tournament has a tradition of awarding 2 cups and 1 trophy. The 135th edition of the Indian Oil Durand Cup tournament is scheduled from 25th July to 23rd August 2026. 24 teams have been invited for the tournament. The teams invited are from Indian Super League, I-League teams, regional clubs, 3 service teams and team from friendly foreign country Sri Lanka. These will be divided into 6 pools of 4 teams each. The tournament is proposed to be played on league cum knockout format similar to that of the previous year. Ladies and gentlemen, we are awaiting the arrival of our Honorable President. Ladies and gentlemen, the President. देवी और सज्जनों, भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे समक्ष पधार चुकी हैं। आप सबसे अनुरोध कि अब आप राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
अब मैं स्टैंडिंग वर्किंग कमेटी डूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी के चेयरमैन एवं जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से स्वागत संदेश के लिए विनम्र निवेदन करती हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, डिफेंस फोर्सेस के सीनियर अधिकारी, आमंत्रित मेहमान, खेल में भाग लेने वाले प्रतिनिधि, बच्चों, देवियों अथवा सज्जनों, ड्यूरेंट कप केवल एक खेल प्रतियोगिता ही नहीं है, बल्कि सहयोग और एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जिसकी गूंज ना कि केवल हमारे देश में बल्कि सीमाओं के पार भी सुनाई देती है। राष्ट्रीय स्तर पर यह टूर्नामेंट देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली टीमों को जोड़ता है। जैसा कि आपको पहला बताया गया, इस वर्ष हमारी 23 टीमें जो कि डिफेंस फोर्सेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सीएपीएफ से हैं, इनके साथ ही साथ हमारे शानदार क्लब और उभरती जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं। ये एक पहल है जो टीमों को एक साथ मिलन करती है, राष्ट्रीय एकता को दर्शाती है और एक दूसरे के प्रति सम्मान और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की ताकत को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि इस बार पहली बार श्रीलंका की एक टीम जो कि डिफेंडर एफसी है, वो भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने जा रही है, जो कि दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का एक शानदार उदाहरण है। आज की ट्रॉफियां जिनका कि अनावरण किया जा रहा है, वे सिर्फ विजय का प्रतीक ही नहीं बल्कि उत्कृष्ट टीम वर्क, अनुशासन और तालमेल के प्रति हमारी कोशिश को दिखाता है। यह खेल की सीमाओं से परे राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। ड्यूरेंट कप का 135वां संस्करण खेल भावना, राष्ट्र एकता और वैश्विक मैत्री का एक प्रतीक है। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एवं चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी एवं प्रेसिडेंट डूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से अपने विचारों को हम सबसे साझा करने का विनम्र निवेदन करती हूँ। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, डिग्नेटरीज, मेहमान और स्पोर्ट्समैन जो डूरेंट कप में भाग लेने वाले हैं, यह हमारे लिए आज बहुत गर्व की बात है कि आज हम डूरेंट कप के ट्रॉफीज़ का अनावरण करने जा रहे हैं। जैसे कि जीओसी दिल्ली एरिया ने बताया, डूरेंट कप सिर्फ एक खेल का प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि आर्म्ड फोर्सेस, सीएपीएफ, बाकी टीम्स जो भाग ले रहे हैं उनका अनुशासन, डिसिप्लिन, टीम वर्क और खेल के प्रति भावना का प्रतीक है। पिछले कुछ सालों में डूरेंट कप ने काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस एडिशन में भी आपके पार्टिसिपेशन से, आपके जोश से और जिन स्टेटों में ये खेल खेला जा रहा है, फुटबॉल का पॉपुलैरिटी ही नहीं बल्कि जो भी टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगा और ये टीम वर्क और डिसिप्लिन का जो है अच्छा उदाहरण होगा। जैसे हम जानते हैं, इस समय फीफा वर्ल्ड कप
जारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रतियोगी और जो हमारे स्पेक्टेटर्स होंगे डूरंट कप को उसी प्रकार से उत्साह से भाग लेंगे और डूरंट कप सिर्फ दक्षिण एशिया में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया में भी इस स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहा है। आज मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया का शुक्रगुजार हूँ कि वो आज इस सेरेमनी में उपस्थित हैं और हमारा जोश और प्रोत्साहन को बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है और मैं सारे खिलाड़ियों, प्रतियोगिताओं, स्पॉन्सर्स और सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरी तरफ से डूरंट कप के सक्सेसफुल कंडक्ट और कंप्लीशन के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद। अब मैं श्री लालियंसवाला छांगते, जो कि स्वयं एक प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी हैं, अपने अनुभवों को हम सब से साझा करने का आग्रह करती हूं। Honorable President of India, distinguished members of the Armed Forces, respected dignitaries, fellow athletes, ladies and gentlemen, good afternoon. It is a privilege and a deeply humbling experience to stand before you today. To be on this stage is something I could never have imagined. Growing up as a boy in Mizoram, in a small village. And today, I came from a simple family where we could not always afford the things we dreamt of, but we were blessed with something far more valuable: faith, hope, and the courage to keep dreaming. As kids, we looked up to the men and women in uniform with immense admiration. We believed that the greatest way to serve our country is by becoming protectors of our nation, just like all of you. Today, that respect has only deepened because I now understand the sacrifices you make every single day, leaving your families behind, standing guard through every challenge so that millions of Indians can live in peace and chase their dreams. As footballers, we wear a different uniform, but with the same pride. Every time we wear the India jersey, we carry our nation's hope onto the field. We strive to honor our country through our dedication, discipline, and teamwork. The Durand Cup holds a very special place in my heart. It is not just one of the oldest and the most prestigious football tournaments in the world. It is a tournament that changed my life. I have had the privilege to play in it several times, and I can honestly say without the opportunities it has given me, I may never have reached where I am today. It became a turning point in my career, allowing me to grow and believe that greater things were possible. To you, our Honorable President, it is a matter of great pride and honor to all of us, not just in the arena of football, but for the entire sporting fraternity, that you have revived the tradition of personally presenting the President's Cup to the champions of this iconic tournament. I sincerely hope this tournament continues to flourish for many generations to come, inspiring young footballers across the country to dream, to compete, and to represent India with pride. To all the teams participating, I wish you all the best. Kalomeh. Jai Hind. अब मैं लेफ्टिनेंट जनरल वी.एम. भुवना कृष्णन, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी कमान एवं पेट्रन डूरंट कप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी
से विनम्र निवेदन करती हूं कि आप 135वें इंडियन ऑयल ड्यूरेंट कप एडिशन के विषय में हम सबको अवगत कराएं। Your Excellency, the President of India, distinguished guests, members of the armed forces, players, coaches, officials, friends from the media, ladies and gentlemen. It's an honor to stand before you at the Rashtrapati Bhavan for the unveiling of the trophy of the 135th edition of the Indian Oil Durand Cup, a tournament whose legacy is woven into the history of our nation and the spirit of sport. The Durand Cup is more than a competition. For 135 editions, it has united communities, celebrated sporting excellence, and offered a stage where discipline, teamwork, and fair play are on display. Born in the service of the nation, it has grown into one of India's most cherished football traditions, bridging generations and regions. Over the years, the Defence Forces and Eastern Command have been proud to play a vital part in nurturing this legacy. Our region, rich in footballing culture, from Kolkata's historic clubs to emerging centers across the East and Northeast, has become a vibrant hub for players and fans alike. Grassroots programs and military-civilian partnership have brought football to thousands of children in towns and districts that once had limited access to structured training. This progress is visible in many ways. Players from the Eastern clubs and academies are increasingly prominent in national leagues and tournaments, reflecting the rising standards. The Durand Cup's renewed prominence shows the power of collaboration amongst the services, civil authorities, state associations, and club administrators. We have seen how simple acts like a coaching clinic in a remote rural school, a shared use of training ground, a weekend tournament can change lives, provide purpose, and instill values that mirror the military ethos, discipline, perseverance, teamwork, and respect for rules. This year's edition will witness participation by 24 teams, playing a total of 43 matches across 5 states at 6 different venues. The tournament will get kicked off on 25th of July, and Kolkata, the heart of Indian football, will host the finals on 23rd of August at the iconic Vivekananda Yuva Bharati Krindagan, the Salt Lake Stadium. As we unveil the trophy for this 135th edition, let us remember the true victory of the Durand Cup is not measured only in goals or trophies, but in opportunities created and dreams awakened. For many young players from the East and the Northeast, this tournament is a first step towards professional careers and even the honor of representing our great country. For our communities in the East, it brings pride and positive engagement. For the services, it is yet another way to serve the nation beyond a call of duty. Our message to the teams: play with courage, play with honor, and respect your opponents and the game. To the supporters, your passion and fairness are the lifeblood of football. Cheer loudly but honorably. To the organizers and all those who have worked tirelessly behind the scenes, your dedication has made today possible. You have our gratitude. We also recognize the important role of the media and supporters in spreading the message of sportsmanship and national unity. Your coverage brings the excitement of the game into homes of our country and encourages future generations to take up the sport. We would like to express our heartfelt gratitude to the state governments of West Bengal, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, and Assam for their wholehearted support for the tournament. We also extend our heartfelt thanks to all our sponsors and partners who make this grand endeavor possible, especially our title sponsor, Indian Oil Corporation Limited, powered by sponsors State Bank of India and Coal India Limited, Sony Sports Network for broadcasting all 43 matches live to 6 countries, and Cherry Tree Solutions Limited for their unwavering passion and commitment.
Your steadfast support has not only elevated the Durand Cup to new heights, but also reaffirmed the vital role that institutions play in nurturing Indian sport. You are not just our sponsors, you are partners in legacy. In closing, we congratulate all the teams, wish them safe conduct and spirited contests, and urge every player to uphold the highest standards of sportsmanship. Let this tournament honor its great history and help write chapters of achievement and camaraderie. Jai Hind. अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से विनम्र निवेदन करती हूं कि आप सब अपना ध्यान सामने लगी स्क्रीन पर केंद्रित करें, जहां डूरंट कप के संचालन एवं प्रारूप पर आप सभी को एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी। The Durand Cup, the oldest football tournament in Asia, a symbol of legacy, honor, and unyielding spirit. Residents of India have patronized this tournament, making it not just a contest, but a cherished national tradition. The Durand Cup now beats strongest in the heart of the East. A celebration bringing together teams from across the country and overseas, inspiring the next generation. Millions united for the love of the beautiful game. The guidance of our Chief of Defence Staff and the 3 service chiefs, and their confidence in the stewardship of the Eastern Command of the Indian Army has helped the Durand Cup rise to new heights, bigger, pulsating, and more competitive. In 2025, history came full circle when the Supreme Commander of the Armed Forces revived the tradition of presenting the President's Cup at Rashtrapati Bhavan to the champions, reinforcing the bond between the tournament, the people, and the highest office of the nation. This year, in its 135th edition, the Indian Oil Durand Cup, powered by State Bank of India and Coal India Limited, is being organized in 5 cities: Kolkata, Imphal, Shillong, Guwahati, and for the first time to Ranchi, as 24 teams divided in 6 groups battle it out for glory and the 3 coveted trophies for the winner. The Durand Cup is part of our footballing soul. The Durand Cup isn't just history, it's the future of Indian football. Pride, passion, and pure football. That's the Durand Cup. देवियों और सज्जनों, अब आपके समक्ष तीनों ट्रॉफीज को लाया जाएगा। देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप देख सकते हैं, बीच में जो ट्रॉफी है वह प्रेसिडेंट्स कप कहलाती है। इस ट्रॉफी को पहली बार भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया। ट्रॉफी विजेता टीम को स्थायी रूप से दी जाती है। आपके दाहिने रखी ट्रॉफी वह शिमला ट्रॉफी कहलाती है। यह ट्रॉफी डूरंट कप के ऐतिहासिक विरासत, शिमला के स्थानीय लोगों के योगदान और भारतीय फुटबॉल की शुरुआती पहचान का प्रतीक है। आपके बाएं रखी ट्रॉफी डूरंट कप कहलाती है। वर्तमान डूरंट कप 1888 विंटेज का है। यह एक रोलिंग ट्रॉफी है जो विजेता टीम को 1 वर्ष के लिए दी जाती है। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एवं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चीफ ऑफ एयर स्टाफ से विनम्र निवेदन करती हूं कि आप अपने कर कमलों द्वारा डूरंट कप प्रतियोगिता ट्रॉफी का अनावरण करें।
धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय। अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से विनम्र आग्रह करती हूं कि आप समारोह में उपस्थित सभी को संबोधित करें। इस आयोजन में उपस्थित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमण्य जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी, विभिन्न फुटबॉल टीम्स के प्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथियों, खिलाड़ियों, देवियों और स्वजनों, डुरांड कप के अनावरण और फ्लैगिंग ऑफ समारोह में आज आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। डुरांड कप टूर्नामेंट ने अनेक फुटबॉल प्रतिभागियों को मंच प्रदान किया है। इसके लिए मैं इस टूर्नामेंट से जुड़े सभी पूर्व और वर्तमान अधिकारियों और खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष कुछ नई टीमें डुरांड कप, द प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी के विजेता बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस बार श्रीलंका की टीम भी इस आयोजन में भाग ले रही है। मुझे विश्वास है कि नई टीमों के जुड़ने से ये ऐतिहासिक प्रतियोगिता और भी लोकप्रिय बनेगी। इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी टीमों और खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आप खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और इस खेल की प्रतिष्ठा बढ़ाएं। मुझे ज्ञात हुआ है कि डुरांड कप के मैच इस बार कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल और शिलांग के साथ साथ पहली बार रांची में भी आयोजित किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि इन आयोजनों से उस क्षेत्र की फुटबॉल खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा देखने का अवसर मिलेगा तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी सुदृढ़ होगा। देवियों और स्वजनों, फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। आजकल फीफा विश्व कप के मैच खेले जा रहा है। इस प्रतियोगिता में विश्व की श्रेष्ठ टीमों और खिलाड़ी अपने देश के फुटबॉल की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उन टीमों और खिलाड़ियों के प्रशंसक पूरे विश्व में फैले हैं जो उनके अच्छे प्रदर्शन की सराहना करते हैं। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन सभी खेल प्रेमियों को उत्साहित करता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है। हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार फुटबॉल में खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हुए टीम को विजेता बनाते हैं, उसी प्रकार हम सभी देशवासी एक दूसरे के साथ देते हुए विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। फुटबॉल के खेल में भारत को विश्व स्तर पर अपना स्थान बनाने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी है। इसी के लिए तैयार अभी से करना है। ये आयोजन फुटबॉल की प्रतिभा को निखारने में सहायक बने, इसी भावना के साथ मैं सभी को मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
अब सभी मार्गदर्शकों से अनुरोध किया जाता है कि आप चयनित गणमान्य अतिथियों के साथ उनके निर्धारित स्थान पर ग्रुप फोटोग्राफ के लिए प्रस्थान करें एवं बाकी गणमान्य अतिथि अपने स्थान पर ही बैठे रहें। उन लाखों फुटबॉल प्रेमियों की धड़कन है जो हर साल इस सफर का हिस्सा बनती है। जब भारत में आधुनिक फुटबॉल अपनी शुरुआती यात्रा पर रहा, तब ड्यूरेंट कप ने उस खेल को पहचान दी। चाहे पीके बैनर्जी हों, चुन्नी गोस्वामी, तुलसीदास बलराम, जरनैल सिंह, सैयद नईमुद्दीन, IM विजयन, बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री जैसे अनेक दिग्गज इस प्रतियोगिता का हिस्सा रहे हैं और आगे चलकर भारतीय फुटबॉल के महान सितारे भी बने। यही कारण है कि ड्यूरेंट कप को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी ऑफ चैंपियंस भी कहा जाता है। मोहन बागान इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम रही है। 17 बार की चैंपियन टीम मोहन बागान। सबसे ज्यादा 30 संस्करणों में मोहन बागान ने हिस्सेदारी ली है। दूसरे नंबर पर ईस्ट बंगाल है, जिसने 16 बार ड्यूरेंट कप का खिताब जीता है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब भारत का पहला फुटबॉल क्लब जिसने 1940 में ड्यूरेंट कप का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया था। स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो 1950 में हैदराबाद सिटी पुलिस की टीम ने आजादी के बाद पहली बार किसी भारतीय क्लब के तौर पर ड्यूरेंट कप का खिताब जीता था और फाइनल में उसने मोहन बागान को हराया था। कई ऐसे इतिहास के अनछुए पहलू हैं इस टूर्नामेंट में जो हमें आज भी इस टूर्नामेंट पर गर्व करने का अवसर देते हैं। 1971 का वो फाइनल भला कौन भूल सकता है, जब पेनल्टी शूटआउट की शुरुआत हुई। 1976 के फाइनल में मोहन बागान के नारायण स्वामी ने पहली बार हैट्रिक लगाई थी। जेसीटी मील्स के अगेंस्ट उनकी वो हैट्रिक आई थी। 2022 में पहली बार ड्यूरेंट कप को अलग अलग शहरों में आयोजित किया गया था, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम। इससे पहले आपको बता दें कि 1888 से 1939 तक इस टूर्नामेंट का आयोजन शिमला में हुआ। 1940 से 2013 और फिर 2016 में इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। 2014 में यह टूर्नामेंट गोवा गया था। 2019 के बाद से कोलकाता, 2022, 2025 और 2026 में इस टूर्नामेंट का आयोजन इम्फाल में हुआ। 2022, 23 और 26 गुवाहाटी इस आयोजन का साक्षी बना। कोकराझाड़ में 2023 से 2025 तक, जमशेदपुर 2024 और 2025, शिलोंग 2024 के बाद और रांची 2026 में पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। एक ऐसा टूर्नामेंट जो हर किसी की पहली पसंद रहा है। ड्यूरेंट कप में कुछ हफ्तों के बाद जब अंतिम सीटी बजेगी, कोई एक टीम ट्रॉफी जरूर उठाएगी, लेकिन जीतेगा भारतीय फुटबॉल, जीतेगी उसकी गौरवशाली परंपरा और जीतेगा वो जज्बा जो 1888 से आज तक कभी नहीं हारा। 135वें ड्यूरेंट कप का मंच सज चुका है और देखिए, पिछली बार की विजेता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। 24 टीमें 25 जुलाई से 23 अगस्त तक टूर्नामेंट चलेगा। कोलकाता, रांची, इंफाल, शिलोंग और गुवाहाटी में आयोजित होंगे मुकाबले। 24 टीमों को 6 ग्रुप में बांटा गया है, हर ग्रुप में 4 टीमें। मोहन बागान का सामना ईस्ट बंगाल से होगा पहले मैच में। 3 करोड़ का प्राइज पूल है। मेनी चैंपियंस, 1 लेगेसी, ये है इस बार की थीम और टैगलाइन।
रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, इंफाल के खुमन लंपक मेन स्टेडियम, शिलोंग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम और कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में इन मुकाबलों का आयोजन होगा। 135वां संस्करण, एक ऐसा टूर्नामेंट जो एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना जीवित फुटबॉल टूर्नामेंट है। ग्रुप ए में है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, मोहन बागान सुपर जायंट, साउथ यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और CISF प्रोटेक्टर्स। ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में इंडियन आर्मी फुटबॉल टीम, समलेश्वरी स्पोर्टिंग, मोहम्मदन स्पोर्टिंग और बागपत फुटबॉल क्लब। ग्रुप सी में जमशेदपुर FC, डिफेंडर्स FC, SC दिल्ली और इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम। ग्रुप डी में है टिडिम रोड एथलेटिक यूनियन फुटबॉल क्लब यानी TRAU FC, निरोका FC रैंगजाई और इंडियन नेवी फुटबॉल टीम। ग्रुप ई में है शिलोंग लाजोंग फुटबॉल क्लब, नोंगसे SS&CC, एक ऐसा फुटबॉल टूर्नामेंट जिस पर हर किसी को नाज है। आज इसमें भारतीय क्लब्स के साथ साथ सर्विसेज की टीमें, समय समय पर विदेशी क्लब की भागीदारी भी देखने को मिलती है। और इस बार डिफेंडर्स FC जो श्रीलंका की टीम है वो भी इसमें अपनी चुनौती पेश करती नजर आएगी। 2019 से इसका आयोजन पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न शहरों में नए स्वरूप के साथ किया जा रहा है। जब दुनिया फुटबॉल इतिहास की चर्चा करती है
तब ड्यूरेंट कप का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। यूरोप के बाहर इतने लंबे समय तक लगातार आयोजित होने वाले टूर्नामेंट बहुत कम ही नजर आते हैं और यही कारण है कि ये टूर्नामेंट अपने आप में गरिमा, उपलब्धियों और विरासत का जीता जागता प्रमाण है। माननीय राष्ट्रपति का आगमन परिसर में हो चुका है और अब वो ड्यूरेंट कप की जो ट्रॉफी की जो यात्रा है उसको फ्लैग ऑफ कर रही हैं। ड्यूरेंट कप, जैसा कि हमने आपको बताया कि ड्यूरेंट कप, शिमला कप और राष्ट्रपति कप विजेताओं को दिए जाते हैं और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने यहां पर फ्लैग ऑफ करके ट्रॉफी की यात्रा की शुरुआत की है। जिन जिन शहरों से ट्रॉफी का कारवां गुजरेगा वो शहर काफी खास होंगे, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से अंकित हो जाएंगे कि 135वें संस्करण में भारत के इन शहरों से ट्रॉफियों का काफिला गुजरा है। महामहिम राष्ट्रपति अब समारोह स्थल से प्रस्थान करती हुई ये भारतीय फुटबॉल, विश्व फुटबॉल के साथ साथ उन तमाम युवाओं के लिए गर्व और गौरव का पल। महामहिम राष्ट्रपति समारोह स्थल से रवाना होती हुई। आज इतिहास ने एक बार फिर से नया अध्याय लिखा है। ड्यूरेंट कप के 135वें संस्करण के ट्रॉफी अनावरण समारोह का समापन होता हुआ इस प्रसारण में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। आप देखते रहिए जीटी स्पोर्ट्स। नमस्कार।